My name is Arfa Shahid and I have survived COVID. पिछले 1 साल से लाखों करोड़ों लोग कोविड का शिकार हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा बीमार नहीं हुए, ख़ुद को क्वारंटीन कर लिया और ठीक भी हो गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जान की बाजी हार गए और उनसे भी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो मौत से लड़ते रहे। So there's no way to know for sure exactly where I got it from because obviously हम लोग तो काफ़ी टाइम से क्वारंटीन करे थे, बल्कि I was extra careful because मेरे parents both are above 60 and they both have pre-existing conditions. और recently मेरी mom को भी heart attack हो चुका है, so we were not going out, मतलब 8-9 months completely inside the house unless absolutely necessary. तो वो it could have happened from anywhere. Actually we suspect we got it from our house help because she had gone for her bi-weekly vacation, or like not vacation but her day off, and during that time when she came back we found out that she had been partying. So we're suspecting that's where we got it from because she started getting sick and she started throwing up and she was the first one who was actually showcasing symptoms. And around the same time फिर मुझे बुखार चढ़ना शुरू हुआ and it started off as a flu. So I thought कि मुझे ठंड लग गई है, I'm susceptible to colds. So I thought okay मुझे normal flu हुआ है, but I don't know why, but my gut feeling was like just get tested anyway, you cannot be safe enough. And I was really worried that अगर मुझे हुआ होगा तो फिर मेरे parents को ना हो जाए. So then I just went ahead and I got the test done. 4 days तक तो I was quarantining at home because the symptoms weren't really anything more than a normal flu. But on the 4th day, my breathing started getting really bad to the point that it was very loud breathing and I literally felt like कि मेरी सांस कोई खींच रहा है. And I couldn't stop coughing, like even after every 5 seconds I would start coughing. So wheezing sound हो रही थी और मेरी खांसी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब बिल्कुल चैन ही नहीं था, मेरा गला छिल गया था and I started sort of coughing up a little bit of blood as well. So it got really severe and we thought okay no, we cannot ignore that. That's when I went to the hospital and they prescribed medication and we came home and I started taking it. लेकिन अगले दिन बहुत तबीयत ख़राब हो गई, मतलब मेरा बुखार ऐसा था कि I felt like कि मुझे अंदर से कोई बेक कर रहा है, लेकिन on the thermometer it wasn't showing कि मुझे बुखार है. So all this breathing combined with the extreme body sensitivity, body pain, I went to the ER and they immediately within 15 minutes they took me in. हालांकि by the way in that hospital, government hospital, beds नहीं थे. They had a severe shortage of beds, but still they took me in. हालांकि I'm not even above 60. They were giving preference to people who have pre-existing conditions and who are older. But I guess my condition was pretty severe, so they kept me in, and that's when I was hospitalized for 2 weeks. Honestly मैं इतनी ज़्यादा ड्राउजी थी और माई हेड स्पेस वॉज नॉट राइट, मतलब इतनी खांसी थी कि बस उस वक्त तो होता था कि सिर्फ तकलीफ़ से निजात मिल जाए, बाकी सबकी खैर है. तो मुझे अपनी फीलिंग्स ऑनेस्टली याद भी नहीं है इतनी ज़्यादा बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली आई वॉज हुक्ड ऑन टू दी IV. आई मीन आई थिंक सोशल मीडिया पे आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि लाइक देयर वर ब्रूजेस एवरीवेयर ऑन माई आर्म्स. तो वो IV लगने की वजह से मुझे ड्राउजीनेस भी बहुत होती थी. फिर जो कोविड स्टेरॉइड उन्होंने दिया था वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सिवियर भी होते हैं. मुझे ज़्यादा फीलिंग्स याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि द नाइट्स वर द वर्स्ट फॉर मी. मतलब रात को ना मेरा टेम्परेचर शायद बहुत हाई हो जाता था बट इट वुडंट शो ऑन द थर्मोमीटर. तो मुझे अंदर से ऐसा फील होता था कि मैं बेक हो रही हूँ एंड आई वॉज कवर्ड इन स्वेट. मतलब मैं 2 हफ्ता एडमिट हुई हूँ और उसमें से शायद मैं सिर्फ 2 या 3 दिन सोई होंगी रात में. आई जस्ट कुड नॉट स्लीप, बहुत तबीयत ख़राब होती थी एंड आई वॉज ड्रेंच्ड इन स्वेट ऑल नाइट और सिर्फ सुबह जाके थोड़ा सा सुकून मिलता था. दे हैड पुट मी ऑन एन ऑक्सीजन मास्क. तो सांस हाँ अगर मैं हटाती थी तो आई वुड स्टार्ट कॉफिंग क्योंकि मुझे न्यूमोनिया भी हो गया था विद द कोविड. और इस कोविड के पर्टिकुलर स्ट्रेन का एक ये भी सिम्टम है कि आपको न्यूमोनिया हो जाता है, अक्सर लोगों को न्यूमोनिया हो जाता है. सो मुझे न्यूमोनिया हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट लाइक अगर मैं मास्क जैसे 5 मिनट के लिए भी हटाती थी या पानी पीने के लिए हटाती थी तो फिर मुझे खांसी आना शुरू हो जाती थी और मुझसे बात नहीं की जाती थी. सो दैट वाज वन थिंग. ऑब्वियसली बीइंग 24/7 हुक्ड ऑन टू एन IV तो बहुत सारे सिम्टम्स आपके सबड्यू हो जाते थे, तभी वो आपके IV लगाते थे. बट मेनली द सिम्टम्स दैट आई हैड वर एक्सट्रीम स्वेटिंग एट नाइट और body pain, weakness, cough and not being able to sort of talk and not having any energy.
Everybody in my family got COVID. मेरी mom को हुआ, but surprisingly she was asymptomatic, and I'm really glad you brought this question up. I'll tell you why. But first, to answer your question, मेरी अम्मी जो है वो asymptomatic थी. She didn't really showcase any symptoms except severe body pain, और हल्का सा जैसे flu होता है उनको वो हुआ. हालांकि she has been diabetic for over 30 years. or almost 40 years now, and she had a heart attack recently. अब्बू को मेरे heart attack हुआ, he's above 65, उनको भी hospitalize किया गया. मेरी बहन visit करने आई थी, उसको जो हुआ, her condition was the most severe. मतलब I think उसको देख कर हम लोग सब बहुत traumatized हो गए, and we've been like just, it was, I have never seen a COVID case like hers before. तो जो मेरी बहन को हुआ, I mean, her body, I think from what I researched, went into septic shock, and it's not like she's young, she's very young, she's 30, she's in her early 30s, mid 30s, early 30s, और उसको इतना बुरा pneumonia हुआ कि they had to put her in a medically induced coma. उसका बीपी एक्सट्रीमली लो ड्रॉप हो रहा था, एक्सट्रीमली लो, जबकि उसको नॉर्मली उसका हाई रहता है, और उसका एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर लो हुआ, एंड देन दे हैड टू इंड्यूस हर इनटू अ कोमा, एंड शी वाज ऑन वेंटिलेटर एंड अनकॉन्शियस फॉर 2 weeks. शी वाज नॉट अवेक, एंड द डॉक्टर्स वर श्योर कि शी वुडंट मेक इट. द डॉक्टर्स डिडंट हैव एनी होप. देयर लाइक बस दुआ करें. You know, they had never seen a case that severe, to the point that when she woke up and when she was recovering in the hospital, the nursing staff, everyone in the hospital came to her and said, "Oh my God, we cannot believe that you have survived. We cannot believe that you made it. Congratulations, you fought COVID." So for us, we weren't sure if we would see her again, and that was extremely traumatizing. You know, because उसको medically induced किया गया था कोमा में, and she was like unconscious for 2 weeks on vent, तो her muscle memory was lost, and her body didn't know that it could walk. So she literally had to have physio in the hospital कि चलते कि दोबारा सीखना कि कैसे चलते हैं, to move her muscles, to move her arms, because she couldn't even lift herself up off the bed. तो ये हालत हुई. मतलब लोग कोविड को इतना नॉर्मली लेते हैं कि ओ इज़ जस्ट फ्लू, एंड ठीक है, हम अलार्म नहीं क्रिएट करना चाह रहे, बट इट इज़ अ वेरी सीवियर थिंग. यू डोंट नो किस तरह इम्पैक्ट होगा. क्योंकि देखिए मेरी अम्मी को अल्हम्दुलिल्लाह you know, it wasn't severe for her. Halaki she has pre-existing conditions, but my sister and I had a much more severe reaction to this COVID thing. So when people say कि जी older people या फिर people with a pre-existing condition उनको ज़्यादा impact करता है, ठीक है, yes, generally that's what we've seen, but equally you could be healthy, you could be young, and it could still impact you. मेरी बहन अल्हम्दुलिल्लाह, I honestly think कि सबकी दुआओं वगैरह की वजह से, you know, अल्लाह ने सुना and gave her शिफा. She is healing, she's getting a lot better. लेकिन अभी भी ये है कि she has to walk with a walker, बिकॉज वो अभी चल नहीं सकती है, एंड आई थिंक 6 months तो उसको लगेंगे फॉर हर ब्रीदिंग टू नॉर्मलाइज, हर लंग्स टू नॉर्मलाइज. मुझे उसके मुकाबले में इतना सिवियर नहीं हुआ था, बट सिवियर था, एंड माई लंग्स आर स्टिल लाइक यू नो, मैं गाड़ी से अगर घर चली जाऊँ तो माई ब्रीदिंग, माई चेस्ट हर्ट्स, बैठे से एकदम से जल्दी से उठ जाऊँ मुझे सिवियर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या अगर मैं बहुत एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए काम कर लूँ, फिजिकल वर्क, हाउस वर्क, तो मुझे बहुत चक्कर आते हैं, टू द पॉइंट दैट आई हैव टू सिट डाउन एंड you know, honestly, I'm the kind of person who believes in talking about their trauma, who believes in talking about things that make you anxious in order to, you know, target the problem at the root. But for some reason, I feel extremely traumatized by the thought of talking about COVID. In fact, I feel like मेरा दिमाग जो है is trying to suppress a lot of the memories that I have with COVID, yeah, what I went through, क्योंकि मैं बोलते बोलते भी एकदम से भूल जाती हूँ कि what actually happened. You know, definitely on an everyday basis, we are still feeling the symptoms. In the recovery period, अगर मैं ज़रा सा भी ठंडा, हल्की सी भी कोई ठंडी चीज़ पी लूँ, तो मुझे फ़ौरन खांसी बढ़ जाती है. So, you know, we are recovering well. It's a slow recovery. Overall, I would call it a very slow recovery. क्योंकि even doctors said कि आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे to go back to your pre-COVID state. I mean, आपने मेरा experience सुना, you know, you heard what my sister went through. Please इसको हल्का ना लें. That's all I can say, because आप एसिम्टोमेटिक होंगे, बट जिसको अफेक्ट करेगा, जिसको कोविड लगेगा, मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट एसिम्टोमेटिक, मे बी उनके सिम्टम्स ऐसे होंगे दैट आर एक्सट्रीमली सिवियर,
और ऑनेस्टली हमारी जनरेशन में, यूथ में, आई सी पीपल ऑन माई सोशल मीडिया, देर गोइंग आउट फॉर ब्रंचेस, देर पार्टिंग. सिर्फ मास्क लगाने से कुछ नहीं होता, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इफ़ यू आर टचिंग समवन या इन्वायरमेंट में अगर स्पिट पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्म्स हैं, यू नो, एंड यू आर इन सच क्लोज कॉन्टैक्ट, यू कैन गेट इट. एंड यू रियलाइज दैट अगर आप एसिम्टोमेटिक होंगे, कोई और सिम्टोमेटिक है, यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल. अगर उनको खुदा ना खास्ता उनकी डेथ होती है, यू आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई अंडरस्टैंड डिप्रेशन, एंगजाइटी, मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है. गो फॉर अ ड्राइव, गो फॉर अ वॉक, आप एक्सरसाइज करें, बट डोंट नीड पीपल, यू नो. अवॉइड, अगर आप किसी फैमिलीज वगैरह से मिले, जस्ट दैट नीड्स टू बी कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड प्लीज डोंट टेक इट लाइट. खतरा अभी टला नहीं. अरफा की कहानी हमारे लिए सबक आमूज है. अगर आप बीमार नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप SOPs फॉलो करें, हैंड हाइजीन मेंटेन रखें, मास्क पहन के रखें और डिस्टेंस भी मेंटेन करें. अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है तो प्लीज़ गो फॉर इट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़.